Okay, students, this is a lecture series of Bright Future English Medium School Khadki, and in this lecture, we are going to study mathematics. This maths concept is for 5th to 8th standard, and in this session of lecture, we are going to learn these are the important factors. These are the points that we are going to study today. Factors, multiples, prime number, composite number, LCM and LCM. So these are the 6 different points that we are going to study today. These are the points which is important for 5th standard, 6th standard, 7th and 8th standard. That means from 5th to 8th standard, this is an important point, and this is also important for other competitive exams also. So let's start with our first point, that name is a factor. Now what is meant by the factor? So factor means what? If the first number is divisible by the second number, that means what? That second number is a factor of first number. That means what? Suppose when we consider number 2, number 2 is completely divisible by 1 and 2. That means what? Number 2 is divisible by 1 and 2. That means what? 1 and 2 are the factor of 2. When we consider 3 is divisible by 1 and 3. So 1 and 3 is a factor of 3. When we consider 4 is completely divisible by 1, 2 and 4. So these are the 3 factors of 4. When we consider number 6 is divisible by 1, 2, 3 and 6. That means what? 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. When we consider 20, so 20 is divisible by 1, 2, 4, 5, 10 and 20. 1, 2, 4, 5, 10 and 20. That means what? 20 have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 20 have 6 factors, 6 have 4 factors, 4 have 3 factors, 3 have 2 factors. फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिस नंबर से फर्स्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड होता है उसे कहते हैं फैक्टर. सो 20 को 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से 20 से डिवाइड होता है. दैट मींस व्हाट? 20 के ये 6 फैक्टर्स है, 6 के ये फैक्टर्स है. when we see these examples, what we found in this example, we found that 1 is a common factor of all, and the number itself is also the factor of number. That means what? 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 4 का फैक्टर 4 है, 6 का फैक्टर 6 है, 20 का फैक्टर 20 है, and all they have 1 as a common factor. That means what? हर एक नंबर का वही नंबर and 1 ये कॉमन फैक्टर होता है. Suppose when we consider the big number, suppose when we consider 50 के फैक्टर 1 is a common factor for all, 50 is also common factor for all. 50 is divisible by 2 because it is a even number. Okay, 50 is not divisible by 3, not divisible by 4, but it is divisible by 5. 50 is not divisible by 6, 7, 8, 9, but 50 is divisible by 10. Also 50 is divisible by 25 and 50. Okay, so these are the again 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 numbers. These 6 numbers are the factors of 50. इसका मतलब ये सारे नंबर से 50 को डिवाइड होता है. तो आप घर पे you can solve the more number of example and you can understand the factor concept. Okay, so our next concept is multiples. Okay, now multiples means what? In simple language, in multiples we can consider that multiples means what? It's a table. When we want to find out the factor of, when we want to find out the multiple of 5, then we can write 5, 10, 15, 20, 25 and up to so on. That means what? We can find the number of multiples of one number. Suppose when we want to find out the multiples of 7, then we can write 7, 14, 21, 28, 35, or you can write 70 or any numbers. So these are the numbers we can consider as we can say that these are the numbers of multiple. That means what? Multiples मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड होता है उसे कहते हैं मल्टीपल. एंड फैक्टर्स मींस व्हाट? ऐसे नंबर जिस नंबर से फर्स्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड होता है. So the question
आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2? क्वेश्चन में भी लाइक दिस, व्हाट इज सम ऑफ factors of 2? What is the sum of factor of 2? Now sum means what? Sum means addition, and what we have to find? Factors of 2. So 2 के factors are 1 and 2, and when we find out the sum 1 plus 2, so we will get the answer 3. So when we ask the question, when we consider the exam point of view, we can consider that this type of question will come, or question may be like this, what is a, suppose when we find out the multiples question may be like this, what is sum of first 5 multiples of 5? What is sum of फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5? इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज सम? सम मींस एडिशन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. तो पहले 5 मल्टीपल्स की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है. मतलब ये फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल एंड फिफ्थ मल्टीपल. सो इन सब की क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है. सो व्हेन वी ऐड दिस 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25, so this is the number. 5 is the first multiple, 10 is the second multiple, 15 is the third multiple, 20 is the fourth multiple, and 25 is the fifth multiple. What we have to find out? We have to find what is the sum of first 5 multiple. This is a very important point. First 5, that means what, हमें sequentially first 5 consider करते हैं. So from the first 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the 5 multiples, and when we add this 5 plus 10, 15, 15 plus 15, 30, 30 plus 20, 50, 50 plus 25, sum is 75, right? So 5 plus 10, 15, 15 plus 15, 30, 30 plus 20, 50, and 50 plus 25, 75. 75 is the sum. So like that, likewise questions, you have to solve the questions. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, लाइक दैट वे. सो इन बेसिक्स what we have to understand, factors मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को पहले नंबर को बाकी के नंबर से जिसको डिवाइड होता है उसे कहते हैं फैक्टर्स. एंड मल्टीपल्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, मल्टीपल्स मींस अ टेबल. आपको क्या करना है, सपोज हमें 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 12. देन व्हाट वी हैव टू डू, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, you will get a 12. So 12 is a multiple of 12. When you multiply 12 multiplied by 2, 12 is a 24. So 12, 24 are the multiples. Likewise हमने अगर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, then 12 is multiplied by 5, we will get a multiple. And likewise आप कौन से भी नंबर से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 50, 20, 100 कौन से भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो आपको मल्टीपल मिलेगा. So from these two concepts, factors and multiples, what we can conclude that factors are limited. Factors are limited. That means what? हमने अगर 5 के factors निकाले, 5 have only 2 factors. 5 have only 2 factors, 1 and 5. Factors 5 के factors सिर्फ 2 है, लेकिन 5 के multiples देखो तो यहाँ पे मैंने 5 निकाले. You can find out some more. 25, 30, 35, 40, 75, 80, 100, 100, 105, 120. So these are the multiples. इसका मतलब क्या है, मल्टीपल्स बहुत सारे आ सकते हैं. मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मतलब मल्टीपल्स बहुत सारे आ सकते हैं, बट फैक्टर्स आर फाइनाइट. 5 के फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड 5. 2 फैक्टर क्यों है, क्योंकि यही दो नंबर से सिर्फ 5 को डिवाइड होता है. अगर हम 6 की बात करें तो 6 को इस 4 नंबर से ही डिवाइड होता है सिर्फ. 6 can be only divisible by these 4 numbers. So these are the factors of 6. And अगर 6 के हमने मल्टीपल्स देखे, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 24, 30, 36. These are the different multiples of 6. Okay. Okay. Now factors and multiples. Now I hope you understood this point, factors and multiples. Now the next point of this video is prime numbers. Now I have written here in short definition of prime number. The definition of prime number is that prime number have only 2 factors.
prime numbers have only two factors. That number is called as a prime number. Suppose when you consider, for example, when you consider 2 and when you find out the factors of 2 के दो फैक्टर है, 1 and 2. That means what? 2 is a prime number because 2 have only two factors. When you consider 3, again 3 have two factors only, 1 and 3, because 3 is only divisible by 1 and 3. So 1 and 3 के सिर्फ दो फैक्टर आते हैं. That means what? 3 को सिर्फ इन्हीं दो नंबर से डिवाइड होता है, इसीलिए 3 is a prime number. Because the definition of prime number is have only two factor. ऐसे नंबर जिस नंबर को सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिस नंबर को सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स. When we consider the 4, for example, when we consider 4, 1, 2 and 4, these are the factor of 4. इसका मतलब 4 को तीन नंबर से डिवाइड होता है. That means what? 4 is not a prime number. 4 is not a prime number. Why it is not a prime number? Because 4 have three factors, and in definition what we have studied, prime numbers have only two factors. यहाँ पे तो तीन factors आ गए. That means what? 4 is not a prime number. So I erase this. When we consider the next number is a 5. So 5 have 1 and 5. So 5 is again a prime number. So at home what we have to find out, to students, you have to find out the prime numbers from 1 to 100. 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है, वो प्राइम नंबर्स आपका होमवर्क है. For today's homework, what we have to find out the prime numbers between, I will write here your homework, find prime numbers between 1 to 100. 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. अनदर एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 8 is not prime number, 9 is not prime number, 10 is not prime number, 11 is a prime number because 11 is divisible by only 1 and 11. 12 is not prime number, 13 is a prime number. Likewise आपको 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? That means what? 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? That you have to find. Now प्राइम नंबर के बीच में आपको आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? So which is the smallest prime number? So smallest prime number is 2. Smallest prime number is 2. Sometimes question में comes like this: what is the sum of first two prime number? First two prime number की सम क्या है? तो इन दोनों की एडिशन करो. ऐसे क्वेश्चन है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, what is the multiplication of first three prime number? First three prime number की मल्टीप्लिकेशन निकालो. या फिर क्वेश्चन ऐसा जा सकता है, what is the multiplication of fourth and fifth prime number? So fourth prime number is 7, fifth prime number is 11. So likewise you have to find out the answer. Now the next topic is composite number. So here we have understood prime number concept. Now next point is a composite number. Now composite numbers have more than two factors. So in short the definition is ऐसे नंबर जिस नंबर को दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? composite number. When we consider, for example, now here we can consider example 4. 4 के फैक्टर्स आते हैं 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. That means what? यहाँ पे तीन फैक्टर्स आ गए, तो ये कंपोजिट नंबर है. अगर दो फैक्टर्स होते हैं उसे कहते हैं प्राइम नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर. समटाइम्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. सपोज हमने 20 एग्जांपल कंसीडर किया, नंबर 20 के फैक्टर्स निकाले. 20 फैक्टर्स है 1, 2, 4, 5, 10 and 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 20 के 6 फैक्टर्स आ गए. हमारी डेफिनेशन क्या बताती है? डेफिनेशन सेज दैट कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. तो यहाँ पे 2 से ज्यादा है, कितने हैं उसका हमें लेना नहीं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है then that number is called as a composite number. So from sequence here in this point you also find out the composite number also. कंपोजिट नंबर ऑल्सो. हमें क्या करना है आपका होमवर्क में 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, कंपोजिट नंबर कितने हैं. नाउ द क्वेश्चन
स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 एंड हियर आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 4, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, व्हाट इज 1? सो फॉर 1 के हमने अगर फैक्टर देखे, 1 हैव ओनली वन फैक्टर, 1 हैव ओनली वन फैक्टर, 1 के दो फैक्टर भी नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है, तो 1 क्या है? सो 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime number nor composite number. इसका मतलब क्या है? 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है. Okay, so composite number, I hope you all understood, and prime number also, I hope you all understood. Prime number again I will explain. Prime number ऐसे नंबर होते हैं जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर से प्राइम नंबर्स 2, 1 और 2, ये दोनों नंबर से 2 को डिवाइड करें और ये दो ही नंबर है सिर्फ, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है. ऐसे एग्जांपल बहुत सारे 7 है, 11 है, 13 है. कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करें, मतलब 2 से ज्यादा नंबर उसके फैक्टर्स है. जैसे 20 देखा आपने, अगर तो अदर एग्जांपल में से किया 25 कंपोजिट नंबर है बिकॉज़ इट इज डिविजिबल बाय 1, 5 एंड 25, so this is called as a composite number. Okay, now we have understood prime number and composite number. Now our next point is highest common factor, that is called as HCF, highest common factor, or it is also called as GCD, greatest common divisor. इसके दो नाम है. समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा व्हाट इज द जीसीडी, समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क लाइक व्हाट इज एचसीएफ. सो दोनों का मीनिंग एक ही है. एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. दोनों अलग-अलग नाम है बट वो कंसेप्ट सेम ही है. नाउ अगर हमने कंसेप्ट समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज एचसीएफ. तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? मैं डायरेक्टली यहां पे एग्जांपल लेता हूं. First example, find HCF of 8 and 16. हमें क्या करना है? 8 और 16 का HCF निकालना है. या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा फाइंड HCF of 8 and 16, या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा भी आएगा फाइंड GCD of 8 and 16, और ऐसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज HCF of 8 and 16. So when you consider now HCF निकालने के अलग-अलग मेथड से, अलग-अलग टेक्निक से. सो हमने अगर फर्स्ट टेक्निक फैक्टर से निकाला, फैक्टर से हमने अगर निकालेंगे तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द फैक्टर्स of 8. So we will find out the first factor of 8. So factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. These are the four factors of 8. And when we find out the factors of 16, factors of 16, so 16's factors are 1, 2, it is not divisible by 3, it is 16 is divisible by 4, 5 से 16 को डिवाइड होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं, 8 से 16 को डिवाइड होगा, 8 to the 16 and 16 1 the 16. So these are the factors of 8 and these are the factors of 16. So when we consider the common factor, the word is there common factor. So we will firstly find out the common factor. Common factors. So common factors, see here when we highlight these numbers, so both the numbers have 1, so 1 is a common factor. Okay, again 2 is also there in both the factors, so 2 is also there. Okay, again 4 is also there, so 4 is common, and 8 is also there, so 8 is also common. So here 16 is remaining and here nothing is left. Okay, so we have just find out common factors. यहाँ पे हमें सिर्फ common factor निकालना है, हमें निकालना है HCF. So now here we will find out the HCF. HCF, highest common factor or greatest common divisor. Now common factors we have already find out here. हमें निकालना है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा. तो इसमें सबसे, या फिर जीसीडी हमने देखा तो ग्रेटेस्ट, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 8. 8 सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज हाईएस्ट नंबर. सो दैट मींस व्हाट?
8 is a HCF and this is the answer. HCF of 8 and 16 is 8, मतलब 8 और 16 का HCF आता है 8. सेम एग्जांपल, अगर हमने ये सेम एग्जांपल दूसरी मेथड से फाइंड किया, दूसरी मेथड कौन सी है? इसके पहले फैक्टर्स निकालो. तो फर्स्टली आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. दिस इज द फर्स्ट मेथड. एक मेथड से आप ऐसे निकाल सकते हो. इसके सॉल्व करने के लिए एक सेकंड मेथड है, दूसरी मेथड. वो मेथड क्या है? हमें क्या करना है? पहले इसके फैक्टर्स निकालना है. लेकिन कौन से फैक्टर्स निकालने? प्राइम फैक्टर्स निकालने. सो इन शॉर्ट मैं आपको प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो बताता हूं. व्हाट इज मीन बाय प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर, सपोज हमें 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने या फिर 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें? 18 हमें लिखना है लेकिन प्राइम नंबर में लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर उसको हम अलग इसमें लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 18 को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 या फिर 18 1 जा 18. सो ये हमने तीन अलग अलग सेक्शन में 18 को लिखा. तो इसमें से प्राइम फैक्टर कौन सा है? सो प्राइम फैक्टर्स, हमने पहले फैक्टर्स देखा, लेकिन प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे 9 आया, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टर. 9 multiplied by 2 is not a prime factor because 9 is not a prime number. Here when we consider 18 and 1, 18 and 1, so इसमें 18 prime number नहीं है, so this is also not a prime factor. So what is left? 3 multiplied by 3 multiplied by 2. 3 3 are 9, 9 2 are 18. That means what? 3 and 2. यहाँ पे 3 है और 2 है. ये तीनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर है. That means what? 18 के प्राइम फैक्टर से 3 multiplied by 3 multiplied by 2. अगर हमने इसका दूसरा एग्जांपल लेगा, सपोज हमने 16 कंसीडर किया है. सो 16 के प्राइम फैक्टर देखो क्या आते हैं? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. This is called as a prime factor because 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 को इस फॉर्म में लिखा, ऐसे फॉर्म में लिखा जो सारे प्राइम नंबर्स हैं. यहाँ पे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 16 के फैक्टर्स आए prime factors 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So this is called as a prime factor. So now we will directly solve the examples. 8 के prime factors हमें निकालने हैं. तो factors of 8 is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. अगर हमने दूसरी इसमें लिखा तो देखो 8 के फैक्टर्स आते हैं 2 multiplied by 4 या फिर 8 multiplied by 1 या फिर 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Now in this example हमने देखा तो देखो 4 is not a prime number, so this is not a prime factor. 8 is not a prime number, so this is also not a prime factor. But in this situation 2 multiplied by 2 multiplied by 2, these all the three numbers are the prime numbers. So ये 2 prime number है, तो 8 के prime factors आते हैं 2. That's why I wrote this here 2 multiplied by 2. and 16 के prime factors आते हैं 16. आप अगर आपको ऐसे नहीं आता है you can solve like this also. इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं. ओके 16 कैसे फैक्टर? 16 को इस सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो 16 को सबसे छोटे प्राइम नंबर होते हैं 2 से डिवाइड. 2 8 जा 16, देन 8 को 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, देन 4 को 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. सो 16 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 these are the number 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. So these are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. अब इसका हमें HCF निकालना है. So when you are finding out HCF by using this technique, यहाँ पे आपको क्या करना है? इसमें कॉमन क्या है देखना है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें एक बार उसको लिखेंगे 2. Then here we have again one more 2. अगेन यहाँ पे भी कॉमन है और 2, यहाँ पे आ गया 2. सो इनके आंसर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. सो हमने दो अलग अलग मेथड से इसको फाइंड किया, तो दो अलग अलग मेथड से हमें आंसर सेम ही मिलता है. आप ये टेक्निक यूज करो या फिर ये मेथड यूज करो. ऐसे भी आप HCF सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी आप HCF सॉल्व कर सकते हो. बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आप इस मेथड से सॉल्व करने जाओ, यहाँ पे 8 and 16 है, वो छोटे नंबर थे. सो
आपने जल्दी में इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर नंबर 100 से ऊपर आया है तो 200, 500 टू 900, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सो व्हेन यू यूज बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको इजीली आंसर मिलता है। तो अगेन आई विल यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ 10, 20 एंड 25। यहाँ पे हम तीन नंबर का HCF निकालते हैं। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर, सो प्राइम फैक्टर का निकालने के बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे मैंने आपको डिवीजन करके बताया था। अभी मैं और एक टेक्निक बताऊंगा, यहाँ पर ट्री मेथड है, ट्री डायग्राम ड्रॉ करके आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। सो 10 इज डिविजिबल बाय 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर से उसको डिवाइड होता है 10 को 2 से। सो 2 5s are 10, 2 5s are 10। सो 10 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज 10 को 2 और 5 से, या तो 2 5s are 10 से डिवाइड होता है, 2 5s are 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 5, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है 20। सो सी 20 को 2 से डिवाइड होता है, 2 10s are 20। यहाँ पे हमने एक ड्रॉप करने के बाद स्टॉप किया था, बिकॉज हमें नेक्स्ट नंबर मिला था 5 and 5 is a prime number. Here we got 10, 10 is not prime number, so again we have to split the 10 को split किया, 2 5s are 10, 2 5s are 10। so 20 के फैक्टर्स आते हैं, prime factors of 20, 2 into 2 into 5, 2 multiply by 2 multiply by 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसको, 2 2s are 4, 4 5s are 20। so 20 के प्राइम फैक्टर्स ये है। नेक्स्ट नंबर है 25। सो 25 को 2 से डिवाइड नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑड नंबर। 3 से डिवाइड नहीं होता, बिकॉज इसकी एडिशन 7 आती है। अगर आपने डिविजिबल टेस्ट पढ़ा होगा तो समझ में आता है। 2 + 5 7, and 7 is not divisible by 3, so 25 is also not divisible by 3। 4 से उसको डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है 25, 5 5s are 25, दोनों प्राइम नंबर आते हैं। सो वहां पर ही आपको फैक्टर छोड़ देना है। सो 25 के फैक्टर से प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले दूसरी मेथड से। आप अलग मेथड यूज करके फाइंड कर सकते हो, या फिर इस मेथड को यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। सो हियर वी आर फाइंड आउट फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 and 25। सो आवर हाफ वर्क इज डन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। सो इसका HCF निकालना है। सो HCF के लिए अगेन द सेम थिंग्स, हमें पहले जैसे हमने कॉमन नंबर्स फाइंड आउट किए थे, तो कॉमन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। सी हियर वी हैव 2, हियर आल्सो वी हैव 2, बट हियर वी डोंट हैव 2। यहाँ पे 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, बट तीनों में अगर कॉमन देखें तो हमें देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। सो ओनली 5 इज कॉमन, तीनों में 5 कॉमन है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमें वो 2 नहीं लेना है। हमें क्या करना है, जितने कॉमन फैक्टर्स है वही लेने हैं। सो हियर वी हैव ओनली 5, और ये तीनों के बजाय मतलब एक ही ग्रुप बनता है। सो यहाँ पर HCF आता है 5। सो हियर द HCF ऑफ 10, 20 and 25 इज ए 5। इन शॉर्ट, और अगर हमने कंसेप्चुअल देखा कंसेप्ट वाइज, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट नंबर जो 10, 20 और 25 तीनों को डिवाइड होता है। सो दैट हाईएस्ट नंबर इज द 5, बिकॉज 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर कौन सा भी बड़ा नंबर नहीं है जिसको 10, 20 और 25 को डिवाइड होता है। 5 से छोटा 1 से इन तीनों को डिवाइड होता है, लेकिन हमें 1 नहीं लेना है, हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करना है। सो दैट हाईएस्ट नंबर इज 5। Okay, and suppose third example, may we consider HCF of 15 and 17। 15 और 17 का हमें HCF फाइंड करना है। HCF of 15 and 17।
इन दोनों का सपोज हमें HCF फाइंड करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालें। सो आई नो द फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर्स हमें पता है डायरेक्टली। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 15 एंड 17 बिकॉज़ 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 का तो फैक्टर ही नहीं है, 17 के फैक्टर नहीं हो तो 17 के फैक्टर सपोज हमने अगर लिखे 1 into 17 ही आएंगे या फिर सिर्फ 17 आएगा। ओके, 17 इज अ प्राइम नंबर। सो इस चीज में, इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, देखो इन दिस एग्जांपल और इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। इस एग्जांपल में हमने 5 कॉमन था इसलिए एक बार लिखा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन में हमें क्या करना है, 1 LCM लिखना है एंड दैट इज द आंसर। व्हाई? बिकॉज़ इस नंबर को कौन से भी बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता। अगर हमने 15 किया तो दूसरी मेथड से हमने फाइंड किया, सपोज 15 के फैक्टर से 1 3 5 एंड 15 एंड 17 के फैक्टर से 1 एंड 17, तो इन दोनों को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड होता है, तो वो नंबर है 1। 1 को छोड़ के दूसरे कौन से भी नंबर से उसको डिवाइड नहीं होता, इसीलिए इसका एलसीएम आता है 1। Okay, so these are the two different types of example. I hope you understood. And now this topic is completed. LCM. Now we will start LCM. Okay, now our next point and the last point is LCM, lowest common multiple. The full form of LCM is lowest common multiple. And now we will directly find out we will directly see the examples of LCM. The first example is that find LCM of 8 and 16. 8 और 16 के हमें क्या करना है, LCM निकालना है। So इसमें भी हमें क्या करना है, firstly we have to find out the prime factors of 8, prime factors of 16. So we will find out the first prime factors. First we have to find out prime factors. So 8's prime factor is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. And 16's prime factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Let's say the example में मैंने बताया था how these factors comes. 8's factor 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 16 factor 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So these are the numbers. Now LCM. Now in LCM what we have to do? LCM, likewise LCM we have to find out first common factors. LCM means what? Common factors multiply by non-common factors. जो कॉमन फैक्टर्स है या फिर फैक्टर्स है और जो नॉन कॉमन फैक्टर या फिर फैक्टर्स है उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो वी विल फर्स्ट सी द कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ग्रुप बनता है, तो इन दोनों ग्रुप में से एक 2 लेना है, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। देन द नेक्स्ट इज 2 2, सो अगेन हियर वी हैव नेक्स्ट ग्रुप, ये इस ग्रुप में से एक 2 आया, इस ग्रुप में से एक 2 आया, again one more group is there, 2 2, so again we will take 1 2 from this group. Now these are the common factor, so this is a common factor, multiply by, now we have to take non common factors. So non common मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं होता बचा, लेकिन यहाँ पे 2 बचा है, so that 2 we have to take here. This 2 is a non common factor, so ये 2 यहाँ पे आता है, तो इन सब की हमने मल्टीप्लिकेशन की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, so 16 is a LCM of 8 and 16. 8 and 16 का LCM आता है 16। इसको भी सॉल्व करने के लिए अलग मेथड है, जैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने सेकंड टेक्निक से यूज किया, ये सपोज फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड ऐसी भी है, आपने यही एग्जांपल दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, हमने अगर 8 के मल्टीपल्स देखे, देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48, like this. These are the multiples of 8 and multiples of 16. 16 के मल्टीपल्स हमने देखे, 16 32 48
because multiples are infinite. So when we find out the multiples, so हमें 8 के मल्टीपल्स मिले, 16 के मल्टीपल्स देखे, तो हमें क्या करना है, लोएस्ट मल्टीपल देखना है, कॉमन होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, 48 है, 48 है, अगर हमने इसके आगे निकाला तो बहुत सारे नंबर्स कॉमन नंबर्स आ जाएंगे, बट द लोएस्ट नंबर इज 16, दैट्स व्हाई एलसीएम इज 16। सो दोनों में मेथड से हमने अगर देखा तो एलसीएम आता है 16। और एक मेथड से, लेकिन वो that method that we will learn in next video, but here we have studied two methods. So इस मेथड से निकालो प्राइम फैक्टर्स निकाल के या फिर मल्टीपल्स निकाल के निकालो, आपको मिलेगा एलसीएम, एंड दैट एलसीएम दोनों में मेथड से, और एक मेथड है तीनों मेथड से आप सॉल्व करो, उसका आंसर आपका सेम ही आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एलसीएम ऑफ 8 and 16. Okay, now we will take a common example. In one example we will find out HCF and LCM. दोनों भी एग्जांपल में यही निकालेंगे, HCF भी निकालना है और LCM निकालना है. Here we have to find out LCM of 3 numbers and HCF of 3 numbers. So what we will find first? We will find out the prime factors. We will find out first prime factors. So ये 3 नंबर के लिए अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स में निकालता हूँ अलग-अलग मेथड से. सपोज मैंने 36 का ऐसे निकाला, 36 is divisible by 2, 2 18s are 36, 18 is divisible by 2, 2 9s are 18, 9 is divisible by 3, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So this is the prime factors of 36. 81 के prime factors suppose आपको 3 मेथड से निकाल के निकालना, 81 that is 81 is not divisible by 2, इसको 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 3 27s are 81, 27 is again divisible by 3, 3 9s are 27, 9 is divisible by 3, 3 3s are 9. So this is factors of prime factors of 81 and 27. So मैं ऐसे निकालता हूँ 27 के 3 multiply by 9, 3 9s are 27, 3 multiply by 3 multiply by 3 27. ओके, ये प्राइम नंबर आया, इनको मल्टीप्लाई करके तो ये प्राइम नंबर आया. सो हमने 3 अलग-अलग मेथड से, यू कैन चूज एनी मेथड, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, डिवीजन मेथड सॉल्व करो, ट्री मेथड सॉल्व करो, या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे. सो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस में प्राइम फैक्टर्स लिखा हूं. सो 36 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. Prime factors of 81 prime factor 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, and 27 से prime factors आते हैं 3 into 3 into 3 3 into 3 into 3. You can cross check also, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, and here 3 3s are 9, 9 3s are 27. Now we have to find out LCM and LCM. So LCM we will find first. We will find first LCM. Now in LCM what we have to find out, highest common factor. We will see the common things. Now यहाँ पे 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, so leave the 2. 3 तीनों में दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन 3 के बजाय हमें एक बार 3 लिखना है, मतलब एक ग्रुप मिलता है कॉमन का ग्रुप. सो ये 3 थे, इसके बजाय हमने सिर्फ एक लिखा. अगेन दिस 3 एंड दिस 3 मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखो कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो ये 1 2 3 इन तीनों का एक ग्रुप, 1 2 3 इन तीनों का एक ग्रुप किया. सो हमें ये 3 नंबर कॉमन मिले, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बचा, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं बचा, यहाँ पे 2 है तो इसमें बचा नहीं. तो नथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट दिस 2 3s. ये 2 3 को छोड़ के कुछ कॉमन नहीं, सो दैट इज कॉल्ड एज HCF. इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3s are 9, और इन 3 नंबर का HCF आया 36, 81 और 27 का HCF आया 9. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट LCM. Now how to find out LCM? LCM फाइंड करने के लिए देखो, ये तो हमें LCM मतलब lowest common multiple. Firstly what we have to do? We have to take the common factors. So these 2 3s are the common. ये 2 3 common है. अब हमें देखना है non common.
नॉन कॉमन मतलब ये दो टू देखो इधर है लेकिन इधर नहीं है इन दोनों में, तो ये नॉन कॉमन हो गए। तो ये दोनों भी हम लेते हैं यहाँ पे दिस टू एंड दिस टू नॉन कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो इस सिचुएशन में क्या करना है, हम सपोज ये टू ले लिए। अब इस सिचुएशन में ये टू दो बार लेने हैं बिकॉज ये नॉन कॉमन है, लेकिन इस सिचुएशन में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इन दोनों में 3 है वो एक ही बार लेना है, दैट 3। ओके, इन दोनों के बजाय हमने सिर्फ इधर एक ही बार लिया और ये बचा हुआ 3 इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3। अंडरस्टूड? देखो ये कॉमन जो आए थे, कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ में निकाले वही निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं नॉन कॉमन, ये दो नॉन कॉमन है, देन यहाँ पे दोनों में 3 है वो कॉमन है, दोनों में है सिर्फ, तो उसको भी हमें सिर्फ एक बार लिखना है और एक बचा हुआ 3। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन इजी तरीके से करते देखो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 2 2 जा 4, 81 मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, so that is 324 is the LCM of these 3 numbers। आप मल्टीप्लिकेशन चेक करो फिर से, अगर अलग मेथड से करना है तो अलग मेथड से कर सकते हो। 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 3 3 जा 9, 36 into 9 करो तो भी आपको 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 plus 5 32, you will get the same answer। तो मल्टीप्लिकेशन आप कैसे भी करो, नो प्रॉब्लम। सो हमें अलग-अलग टेक्निक से हमने अगर सॉल्व किया तो हमें इसका एचसीएफ मिला 9 एंड एलसीएम इज 324। तो इसी तरह हमारा ये लास्ट टॉपिक भी फिनिश हुआ। सो आई विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अगेन, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम सॉरी इन फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को सपोज हमने 6 के फैक्टर्स निकाले तो 1 एंड 6 is a factors, 6 के फैक्टर 1 2 3 and 6, these are the 4 factors, these are the 4 numbers। इस 4 नंबर से 6 को कंप्लीटली डिवाइड होता है इसलिए उसको फैक्टर्स बोलते हैं। ध्यान में रखो फैक्टर्स में और प्राइम फैक्टर्स में डिफरेंस है। 6 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 because these are the 2 prime numbers, this is not a prime factor, these are the only factors, this is only factors and these are the prime factors। ये प्राइम फैक्टर्स है 2 into 3 because both are the prime number। so हमने फैक्टर्स देखे, मल्टीपल्स मतलब ध्यान में रखो सिंपली इट्स अ टेबल, हमें 6 के मल्टीपल्स निकला है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ऐसे आपको मल्टीपल्स है। प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। कंपोजिट नंबर में मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने अगर 9 कंसीडर किया तो 9 1 3 एंड 9 इसको 3 फैक्टर्स है, सो कंपोजिट नंबर हुआ। वन मोर थिंग वी हैव टू कंसीडर अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। देन वी हैव स्टडीड एचसीएफ एंड एलसीएम। For more videos, you go on Bright Future English Medium School on YouTube channel पे जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो या फिर बाकी सब्जेक्ट हो, उन सब की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। थैंक यू।